ایپیسوڈ 95۔ مجھے خود کو یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا یا محسوس کیا وہ سب خواب اور اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ خواب میں کی جانے والی گفتگو کا ہر لفظ مجھے یاد تھا۔ ساون خان نے مجھے کیا بتایا تھا، وہ جس کمرے میں تنہا اور بیمار پڑا تھا، ہر لفظ جو اس نے بولا تھا، فاطمہ کے بارے میں کہا تھا یا نورین کے لیے، میں دہرا سکتا تھا۔ ساون خان کے بھانجے کا مکرو شیطانی اور پرحوث چہرہ میرے سامنے تھا۔ میرا 1 لاکھ کا انعام مت بھولنا، اس نے تھانے دار سے کہا تھا، اور تھانے دار کا صفاق چہرہ اور اس کے فاتحانہ الفاظ کہ دیکھا فرید، تو بہت بھاگا، بڑے روپ بدلے، مگر قانون کے لمبے ہاتھوں سے بچ کے تو کہاں جا سکتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی یوں لگ رہا تھا جیسے تختہ دار پر جلاد نے پھانسی کا پھندا میری گردن میں کس دیا ہے۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک رات میں یہ دوسرا خواب تھا۔ اس سے پہلے استاد اور کلثوم مجھے سلا کر جا چکے تھے جب میں نے نورین کو دیکھا تھا۔ میرا حالہ خشک ہونے لگا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور بہت دیر تک خالی گلاس ہاتھ میں تھامے دیوار کو دیکھتا رہا، جس پر سینما اسکرین کی طرح مناظر خود روشن ہو کے مٹتے جاتے تھے۔ تھانے دار کے ایک دھماکے سے اندر آنے سے پہلے ساون خان اٹھا تھا کہ مجھے مٹی کا وہ ڈھیر دکھا سکے جو نورین کا مدفن تھا۔ کیا ہوتا اگر تھانے دار کچھ دیر نہ آتا؟ مجھے اتنی مہلت مل جاتی کہ میں نورین کی قبر دیکھ لیتا، پھر چاہے تھانے دار مجھے قبرستان سے پکڑتا یا واپس آتے ہوئے وہ قبر بھی میری یادداشت میں محفوظ ہو جاتی۔ میں باہر آ کر ٹہلتا رہا۔ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، خواہ کتنے بھی حقیقی محسوس کیوں نہ ہوں۔ اگر ساون خان مجھے خواب میں نورین کی قبر دکھا دیتا تو کیا فرق پڑتا؟ وہ سب غیر حقیقی اور خواب کا حصہ تھا۔ رات گئی بات گئی، ایک رات میں 2 خواب جو حقیقت کی طرح تھے، لیکن پہلے کسی خواب پر مجھے حقیقت کا گمان نہیں ہوا تھا، اب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ آخر کیوں؟ استاد کی آواز پر میں چونکا۔ تجھے تو جانا تھا نا کہیں؟ ابھی نہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا جیپ تو وہیں کھڑی ہے۔ وہ ایک کرسی پر ٹک گیا۔ کیا ارادہ ملتوی کر دیا؟ نہیں، ملتوی نہیں کیا تو کیا چھوڑ دیا ہے؟ خیر، ایک بات بتانی تھی تجھے، سکندر شاہ آ رہا ہے۔ سکندر شاہ یہاں آ رہا ہے؟ ہاں، فون کیا تھا اس نے، میں اسے روک تو نہیں سکتا تھا، وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ لیکن خیریت تو ہے نا؟ یار یہ مجھے نہیں معلوم خیریت ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھ سے کام ہوتا تو مجھے بتا دیتا وہ یا بلوا لیتا، مجھ سے بھی اسے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بیٹے، اس کی کوئی ہوتی نا لڑکی تو میں کہتا کہ تجھے پسند کر لیا اس نے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے بارے میں اس کی رائے پہلے بھی اچھی تھی، اور اس کے بعد تو نے خود بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ تیری قدر کرتا ہے، اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تجھے، اور تیرے ساتھ ساتھ انور کو بھی۔ لیکن میں نے حامی نہیں بھری تھی۔ تو انکار کر سکتا اسے؟ اتنا پاگل تو نہیں ہے تو؟ تھوڑا بہت تو ہوں نا۔ تم مجبور تھے استاد، مجھے کیا مجبوری کہ میں اس کے حکم کا غلام بن جاؤں؟ ابے پاگل خانے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسے تو غلامی کہہ رہا ہے؟ ابے ہوش کے ناخن لے، قسمت کی لاٹری کو مت ٹھکرا۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تیرے ساتھ جانے سے بات بن گئی، اب میری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اندازہ ہے تیری ہر بات کا، جو کام تو نہ کر سکا، سکندر شاہ کی مدد ہوگی تو آسان ہو جائے گا۔ کس کام کی بات کرے استاد؟ اب ایک جھاپڑ دوں گا نا تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تجھے نورین چاہیے نا، وہ زندہ ہوگی تو سکندر شاہ اس کو تلاش کر لے گا اور لا کر تیرے سامنے کھڑا کر دے گا، اور معاملہ ہے نادر شاہ کا تو کیا اس سے بدلہ لے سکتا ہے تو؟ میں نے خفت سے کہا، استاد تم تو ناراض ہو گئے، میں تو تمہاری بات بھی مانتا ہوں، تم نے بھی کہا اور بھابھی نے بھی کہ میں بدلہ لینے کا خیال چھوڑ دوں۔ وہ خوش نظر آنے لگا۔ پھر کیا تو نے یہ خیال چھوڑ دیا؟ عقل مانتی ہے پر دل نہیں مانتا، یہ ایسا معاملہ نہیں کہ میں ٹاس کروں اور فیصلہ ہو جائے، معاملہ دل کا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کسی گاڑی کے ہارن پر گیٹ کیپر نے باہر جھانکا اور سکندر شاہ کی گاڑی اندر آ گئی۔ وہ سیدھا ہماری طرف آیا۔ استاد کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے لیے تیسری کرسی کو قریب کیا۔ سکندر شاہ کسی سلام دعا کے بغیر میری جگہ پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا جو تم مل گئے، میں کسی اطلاع کے بغیر آ گیا تھا۔ خیریت تو ہے نا شاہ جی؟ استاد نے پوچھا۔ نہیں، خیریت ہوتی تو ایسے بھاگا ہوا آتا میں، تمہیں نہ بلا لیتا۔ ملک سلیم، ایک مسئلہ آ گیا ہے جو تمہاری مدد سے حل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ؟ ایسا کون سا مسئلہ ہو سکتا ہے شاہ جی؟ ہے نا یار، میرا ذاتی مسئلہ ہے، کسی کو اور کیسے بتاؤں؟ چل اٹھ۔ کہاں؟ میں نے اٹھے بغیر پوچھا۔ میرے ساتھ اور کہاں؟ وہ خفگی سے بولا۔ ابھی اور اسی وقت؟ استاد نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ کیا فضول سوال پر سوال کیے جا رہا ہے؟ یہاں تو کون سا ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کر رہا تھا، اور شاہ جی تجھے پھانسی لگانے کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ شاہ جی، مجھے تھوڑی سی بھی مہلت نہیں مل سکی، مجھے بھی ایک ضروری کام تھا۔ سکندر شاہ کی نظر مجھ پہ جم گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ انکار سننے کا عادی نہیں، یہ مجبوری تھی کہ اس نے سر ہلا دیا۔
1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने उस्ताद की तरफ देखा। 1-2 हफ्ते कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुझे किसी की तलाश है। मिलने का क्या है, मैं तलाश के लिए निकलूं और किस्मत कल मिला दे। उस्ताद से पहले सिकंदर शाह बोला, तुम नौरीन की बात कर रहे हो ना? ये काम मुझ पर छोड़ दो। तुम अकेले अब तक कुछ ना कर सके, लेकिन मेरे वसाइल के साथ ये काम यूं हो जाएगा, यूं। उसने चुटकी बजाई। उस्ताद ने मुझे खफकी से घूरा। शाहजी उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तू तो अकेला टामक टोया मारता फिर रहा है कब से। मेरा काम इतना लंबा नहीं है, 2-4 दिन की बात है। शायद 2-4 दिन भी ना लगे तुम्हें। अजीब बात लगती है ये मुझे। आज तक आपने सिर्फ मेरा नाम सुना था, आपके सारे काम हो रहे थे, और अब एक ऐसा काम आ गया कि मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, इत्तेफाक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शाहजी, ये कैसे हो सकता है कि आप आओ और एक कप चाय भी ना हो? फिर सही गुलाम मोहम्मद, फुर्सत मिलते मैं खुद आ जाऊंगा ये उधार वसूल करने। अंदर जाके मैंने लिबास बदला और सोचता रहा कि सिकंदर शाह को क्या मजबूरी मेरे पास ले आई है। लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब तलाश करने से कासिर रहा और बाहर आकर सिकंदर शाह के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सिकंदर ने रास्ते में कोई बात ना की। उसकी एक वजह ड्राइवर की मौजूदगी हो सकती थी, लेकिन दूसरी ज़्यादा अहम वजह उसकी फिक्रमंदी और परेशानी थी। वो अपने ख्यालों में गुम था। उसके होंठ यूं हिलते थे जैसे वो कुछ कह रहा हो, मगर वो ख्यालों में खुद से मुखातिब था। ये लाशऊरी कैफियत थी। वो मुझे घर के उस कमरे में ले गया जो शायद उसकी खिलवत की पनाहगाह थी। यहाँ एक बेड था, एक सोफ़ा सेट और एक बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम जिसके मुख्तलिफ शक्ल सूरत और साइज़ के स्पीकर चारों तरफ नज़र आते थे। लेकिन यहाँ फ़ोन नहीं था। ये किसी वकील या मुसन्निफ और शायर की स्टडी और लाइब्रेरी जैसी जगह थी जहाँ अपने साथ सिर्फ वो खुद होता था। मुझे म्यूज़िक वही सुकून और आराम देती है जो माँ की गोद में बच्चे को मिलता होगा, या सुकून आवर दवा जो मैंने कभी नहीं खाई। बैठो। वो मेरे मुकाबिल सोफे के बाजू पर सर रखकर लेट गया और एक गोशे की तरफ इशारा किया। कॉफ़ी बना लो मेरे लिए भी। मैंने कॉफ़ी दरमियानी मेज़ पर रखी तो वो आंखें खोलकर उठ बैठा। थैंक यू सलीम। दरअसल मामला रोज़ी का था। आपका मतलब रोज़ीना, आपकी बहू? उसको सब मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? अपने वालिदैन के बारे में? हाँ, वो यहाँ नहीं थी, मुराद के साथ ह्यूस्टन में थी, टेक्सास। इससे पहले वो रोम, लंदन, पेरिस और ना जाने कहाँ कहाँ थी। हनीमून तो खैर था, लेकिन मैंने मुराद से कहा था कि साल 6 महीने से पहले पाकिस्तान का रुख मत करना। मैंने उसे सख्ती से ताकीद की थी, लेकिन एक बात और भी कही थी कि रोज़ीना को पाकिस्तान की खबरों से दूर रखना। ना अखबार ना टीवी। मेरा मतलब है पीटीवी और यहाँ के अखबार। टीवी पर तो ख़तरा कम था, मगर अखबारों का कुछ नहीं पता। ये जो मुल्तान से शाया होते हैं, ये पाकिस्तान के हर शहर में नहीं मिलते, तो बाहर कहाँ मिलेंगे? लेकिन उनकी किसी खबर को जंग या डॉन वाले उठा लें, किसी कॉलम में जिक्र आ जाए। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? आप रोज़ीना के वालिद पीर साईं की दरगाह की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे डब्बा पीर वैसे तो हर जगह है, मगर उसने मेरे साथ पंगा लिया था। शामत आई थी उसकी। दरगाह में वो कुछ भी करता, मुझे क्या। वो भी मेरे कारोबारी मामलात में दखल नहीं देता था। अय्याशी बदमाशी जो चाहे करे, वो भी और मैं भी। लेकिन मामला आ गया था मेरे बेटे का। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी बचाई। मैंने क्या, अल्लाह ने बचाई, वरना वो इकलौता बेटा था मेरा। उसकी माँ भी मर जाती और मैं मरता नहीं तो तबाह ज़रूर हो जाता। पागल हो के ना जाने क्या कर बैठता। बहुत पहले मैंने तय कर लिया था कि इस खतरे का वजूद मिटा देना ज़रूरी है। वो ज़िंदा रहता तो मुराद ना रहता और रोज़ीना का मामला ना होता तो जाहिर है कोई मामला ही ना होता। खैर, मुराद मेरी मदद के बगैर ही कामयाब हो गया। आपने उसे रोका तो होगा? मैंने? उसकी माँ ने तो पैर तक पकड़ लिए थे मुराद के। रोती थी और हाथ जोड़ती थी कि मुराद रोज़ीना को छोड़ के दुनिया की कोई भी लड़की बता दे। लेकिन मुराद के लिए तो दुनिया में एक वही लड़की थी। माँ की मिन्नत समाजत और आंसू आएगा गए। जब उसने परवाह ना की तो मेरे भौंकने से क्या होता। मुझे खड़ा होना पड़ा बेटे के साथ, और मैंने कहा उस पीर की तो। खैर, मर गया वो, तो अब गाली देना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों निकल गए तो मेरा काम आसान हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता था कि मैं भी अमेरिका चला जाऊं। पर जा तो सकते थे आप। हाँ, जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ सब कुछ लपेट देता, काम धंधा छोड़ के चला जाता तो वहाँ क्या करता? बेकार होके बैठ जाता। शहरियत मिल जाती, कारोबार भी कर लेता और पैसे का मसला भी ना होता। मगर यार, जो बादशाहत यहाँ है ना, उसका अपना ही मज़ा है, वो भला वहाँ कहाँ। मैंने सोचा कि मुराद ही वापस आके सारा कारोबार संभाल ले और मैं कुछ ना करूं, बस अपने पोता पोती के साथ खेलता रहूं। हाँ, नाम चलता रहे मेरा। इसके लिए ज़रूरी था कि मुराद की ज़िंदगी महफूज हो, और इसके लिए ज़रूरी था कि उसका दुश्मन नंबर 1 ना रहे। हाँ, या हम नहीं या तुम नहीं।
कुछ ऐसा ही मामला था। प्लान तो कामयाब रहा मेरा, लेकिन रोजीना को पता ना चले ये कब तक हो सकता था। और बिलाखिर जिस बात का डर था वो यहाँ आने से पहले ही हो गई। मुराद की कोशिश के बावजूद उसे पता चल गया। वो जिस होटल में थे, किसी ने होटल का हॉल शादी के लिए किराए पर लिया। यहाँ के एक बिजनेसमैन और सियासतदान के बेटे की शादी थी। और लोग तो खैर थे। उन्होंने होटल में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को भी बुला लिया। एक तरह से दावत आम थी कि जो चाहे शरीक हो जाए। लेकिन मुराद को दावतनामा मिला। वो बेवकूफ़ चला गया बीवी को लेकर। मुमकिन है रोजीना ने कहा हो कि चलो अमेरिका में एक पाकिस्तानी शादी देख लें, अपने पाकिस्तानी और पंजाबी बोलने वाले होंगे। वहाँ बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में औरतों ने अपनी गपशप शुरू कर दी। किसी औरत ने दूसरे से पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। वो मुल्तान की थी और पूछने वाली भी। बस सिलसिला मिल गया। रोजीना कहीं करीबी बैठी उनकी बातें सुन रही थी और किसी से बातें भी कर रही थी। पीर साईं का नाम सुना तो वो चौंक पड़ी। वहाँ दूसरी औरत ने बड़े दुखी लहजे में बताया कि पीर साईं की दरगाह पर क्या क़यामत गुजरी। पहली औरत के लिए ये सिर्फ एक खबर थी। वो पीर साईं की मुरीद नहीं थी, लेकिन वाक़या मुल्तान का था। बात खत्म होने से पहले रोजीना ने दखल देते हुए कहा कि यह झूठ है और किसी बदखा ने अफवाह फैलाई है। खबर सुनाने वाली का नाराज़ होना बरहक था, क्योंकि उसे झूठा और अफवाह फैलाने वाली कहा जा रहा था। उसने कहा कि अखबार भी झूठ बोलते हैं, खुद देख लो वरना मैं दिखा दूंगी। फिर रोजीना ने बता दिया कि वो कौन है और शादी की महफिल में रोना पीटना शुरू किया तो मुराद बड़ी मुश्किल से उसे अपने कमरे में ले गया। उस पर हिस्ट्री का दौरा पड़ा। उसने मुराद को बुरा भला कहा कि उसको तो पता होगा। फिर डॉक्टर आया और उसने रोजीना को दवा देकर सुला दिया, मगर वो उठी तो फिर वही रोना धोना और ज़िद कि मुझे अखबार ला कर दो। पाकिस्तान का पुराना अखबार कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं थी कि मुराद ला कर देता, मगर रोजीना कहाँ मानने वाली थी। उसने होटल वालों से कहा, सिफारत खाने का नंबर दिया। किस्सा मुख्तसर कि उसे अखबार मिल गया। उसने खुद सारी तफसील पढ़ ली। उसके बाद रोजीना ने ज़िद की कि पाकिस्तान चलो, मेरे माँ बाप मेरी बहन सब मर गए और मैं ज़िंदा हूँ, मुझे भी उनके साथ दफन होना है। ज़ाहिर है ये वो रोजीना नहीं थी जो माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर आई थी, जिसने खुद सारे खून के रिश्तों पर मुराद की मोहब्बत को तरजीह दी थी। सदमे ने उस रोजीना को मार दिया था और दूसरी रोजीना वही थी, उस घर की बेटी। फिर मुराद ने मान ली उसकी बात। कैसे ना मानता, वो पाकिस्तान नहीं अमेरिका में थे, वो अकेली आ जाती, मुराद उसे रोक नहीं सकता था। तो फिर आई क्यों नहीं? कल आ रही है, लंदन और दुबई के रास्ते, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी। फिर वो चुप हो गया। आपको तो फेस करना पड़ेगा। उसने मुझे यूं घूरा जैसे ऐसी बेवकूफ़ी की बात की वो मुझसे तवक्को नहीं रखता था। यही तो सारा मसला है। हाँ, मसला यकीनन होगा, लेकिन कितने दिन? माँ बाप तो सबके मरते हैं। अबे पागल के बच्चे, वो मुझे जिम्मेदार समझती है। सिकंदर शाह ने कॉफ़ी का मग दीवार पर खींच मारा। आपको? हाँ मुझे। लेकिन दरगाह की तबाही और सारी खूनरेजी के जिम्मेदार आप नहीं, डाकू थे। खबर यही होगी और नाम होगा कि किस डाकू के गिरोह ने ये सब किया था। हाँ, और इसी से सारी खराबी हुई। गामा रुस्तम का नाम था और वो गामा रुस्तम को जानती है। क्या जानती है? यही कि वो किसके हुक्म का गुलाम है, मैंने उसे पाल रखा है। ओह, तो यह है मसला। मैं भी हैरान था कि मैं अचानक तुम्हारे लिए इतना अहम कैसे हो गया, इस हद तक कि तुमने मुझे एक पार्टनर, एक मुशीर और फैमिली मेंबर की हैसियत तक दे दी। उसने दुखी नज़र से मुझे देखा। मेरे जैसे शख्स पर लोग एतबार नहीं करते, मगर इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि मेरे मुंह पर ऐसा कह सके। आज सुबह मुझे 8 बजे सब मालूम हुआ। उस वक्त वहाँ गुज़िश्ता रात के 10 बजे थे, ह्यूस्टन में। रोज़ी ने जब सो गई तो मुराद ने मुझे फ़ोन किया। 8:30 बजे, यानी 1.5 घंटा पहले डॉक्टर ने उसे सुकून आवर इंजेक्शन दिया था। कल खुद मुझे कुछ मालूम नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने शर्मिंदगी से कहा। मैंने तुमसे जो भी कहा था नेक नियति से कहा था। चौधरी ने तुम्हें कबूल कर लिया था, जो इंतहाई तंग दिल और खुद गर्ज लोग। अब वो मर गए तो मैं उन्हें नेक, फैयाज और शरीफ तो नहीं कह सकता ना। शाहीना जिंदा रहती तो तुम्हारा मेरी बहू रोजीना से बहनोई का रिश्ता होता कि नहीं? मैं पार्टनरशिप की जगह मुलाजमत की बात करता तो तुम कबूल ना करते, और तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम मुराद के लिए वही करो जो अनवर के लिए कर चुके हो। जब वो मेरा बिजनेस संभाले तो मुझे फिक्र ना हो। बाप की बात वैसे भी बेटे कहाँ सुनते हैं, तुम्हारी बात वो सुनेगा, क्योंकि तुम उसके मुआविन और मददगार थे जब वो रोजीना के साथ निकला था। पार्टनरशिप का मकसद सिर्फ तुम्हें इज्जत देना था, ये एहसास दिलाना था कि तुम हमारे मुलाजिम नहीं हो, जो के पट्टे। मैं अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदगी का इजहार कर चुका हूँ, गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं। वो बस ऐसे निकल जाती हैं। जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है उनको गालियाँ देना ज़रूरी होता है, उनकी औकात याद दिलाने के लिए कि वो शरीफ और मोअज़्ज़ज़ नहीं हो गए।
बुरी आदत है मेरी, मैं जानता हूँ, पर मैं गुस्से में आ गया था। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं क्या करूं अगर बेटी अपने बाप से खफा है? तुम उसे यकीन दिला सकते हो कि अखबार ने जो लिखा वो झूठ है, और वो मान लेगी मेरे कहने से? अगर तुम चाहो और कोशिश करो तो उसे यकीन दिला सकते हो। मुश्किल है ये काम, पर नामुमकिन नहीं। एक चैलेंज है तुम्हारे लिए ये। सिकंदर साहब, उसे मालूम है तुम शाहीना से शादी करने वाले थे। वो ना मारी जाती तो ये शादी हो जाती। उसे ये भी मालूम है कि शाहीना तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी। ये उसने खुद कहा आपसे? नहीं, उसकी अपनी माँ से बात होती थी। शाहीना भी उसकी बहन थी। बहुत पहले उसने कहा था कि ये मलिक सलीम एक साइक के पीछे भाग रहा है। नौरी ने कासिब बनकर उससे चिमटी हुई है, मगर बाजी उसका इलाज कर लेगी। बिलाखिर वो हथियार डाल देगा और सारी उम्र उसका गुलाम बनकर रहेगा। क्या ये गलत है? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मामला कुछ और है। बात एतमाद की है। वो समझती है तुम अच्छे और सच्चे आदमी हो। तुम बता सकते हो कि शाहीना कैसे मारी गई, तुम्हारी नज़रों के सामने। तुम चश्मदीद गवाह हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुमने सब देखा। अगर तुम कहोगे कि वो मांझे वाला का गिरोह था। मांझे वाला? हाँ, ये भी एक डाकू है। साहिवाल के इलाके में था, फिर सिंध चला गया और कच्चे के इलाके में वारदातें करता रहा। अब कुछ अर्सा हुआ लौट आया है। अगर तुम कहोगे गामा रुस्तम का नाम तो मेरी दुश्मनी में लिया गया होगा, वरना वो तो मांझा वाला के साथ ही थे। रोजीना कहेगी तुम कैसे जानते हो? हाँ, वो ऐसा ज़रूर कहेगी, लेकिन तुम कह सकते हो कि डाकू उसका नाम ले रहे थे, और ख़ुद शाहीना ने तुम्हें बता दिया था कुछ देर पहले। वो इसीलिए मारी गई। गामा रुस्तम के साथ ही होते तो ऐसा जुल्म कभी ना होता। क्या उस इल्म है कि आपकी और पीर साईं की दुश्मनी थी? मालूम है, लेकिन तुमको झूठ बोलना है तो कम ज़्यादा कुछ नहीं, और इस झूठ का मकसद नेक है। गुनाह सारा मेरे सर, मैं जानूँ मेरा खुदा जाने। नेकी का पहलू उसमें क्या है? मैंने तलखी से पूछा। उसे एक लड़की को बचाना, और उस रिश्ते को बचाना जो मुराद से है, जो हमसे है। हो सकता है वो मुराद को छोड़ दे कि तुम्हारा बाप मेरे माँ बाप और मेरी बहन का कातिल है। मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ, और उस कातिल के बेटे से रिश्ता कैसे रख सकती हूँ? 101 सबब बन जाएंगे। वो अपने ख़ानदान के कातिल की नस्ल को आगे चलाएगी? नामुमकिन। और एक के बाद दूसरा सदमा ये होगा जब वो मुराद को छोड़ेगी, फिर रह के जाएगा उसके पास ज़िंदा रहने के लिए। कौन संभालेगा उसे? मुराद उसे लेकर अलग हो जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहरहाल उसके यकीन के मुताबिक उसके सारे ख़ानदान के कातिल का बेटा रहेगा। नामुमकिन होगा उसका मुराद की बीवी बन के रहना, और गलत भी नहीं होगा, लेकिन अलग वो एक ही सूरत में होगी। किस सूरत में? लाश की सूरत में। वो खुदकुशी कर लेगी। तुम मुझसे लिखवा लो। एक हादसे को वो बर्दाश्त कर जाती, सब कर लेते, लोगों के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। पर यह मसला मुख्तलिफ है। अगर उसका शौहर मुराद ना होता तो भी वो बिलाकर रो धोकर सब्र कर लेती कि अल्लाह की मर्ज़ी। मगर आगे मामला उसकी अपनी मर्ज़ी का। वो कातिल के ख़ानदान से रिश्ता रखे ना रखे, उनकी नस्ल को आगे चलाए ना चलाए, इस पर वो समझौता नहीं करेगी, कभी नहीं। और कोई भी लड़की सूरत हाल में नहीं कर सकती। इस सारे अजाब का आसान हल होगा मौत, जिसे वो यहाँ आने के बाद गले लगाएगी, माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के बाद। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जा सकते हो इनकार करके, मगर बाद में मेरे अंदेशा सच साबित ना हुए ना तो यहाँ आकर मेरे मुंह पर थूक देना। तुम इस अंजाम से हम सबको बचा सकते थे, मगर तुमने इनकार कर दिया। इस बात पर वही थूक अपने चेहरे पर भी मल लेना। मैंने अपना सर थाम लिया। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। मैं कातिल को बचाऊं उस सज़ा से जिसका वो मुस्तहक है। उसको कानून सज़ा ना दे, या उसकी सज़ा यौम हिसाब तक इल्तिवा में रहे। ये तो बहुत मामूली सज़ा होगी कि उसके बेटे का घर उजड़ जाए, उसकी मोहब्बत छिन जाए। वो सिकंदर जैसे बाप का बेटा 1 साल गुजरने से पहले दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन रोजीना, क्या उसे भी मर जाना चाहिए? उसे किस जुर्म की सज़ा में मोहब्बत का और अपने मुस्तकबिल का खून करना पड़ेगा? उसे कैसे बचाया जा सकता है?